Hello students, today I am here with the next part of methods or functions, that is function overloading, which is very important concept of functions. So let's start with function overloading. So before understanding function overloading, we should know that function overloading is a type of polymorphism. Polymorphism is actually of two types, compile time polymorphism and runtime polymorphism. Compile time polymorphism is again of two types, function overloading and operator overloading, and runtime polymorphism has a type function overriding. So today we are going to discuss function overloading. Let's start with the concept of function overloading. A function name having several definitions in the same scope that are differentiable by the number or type of their arguments, or we may call it as signature, is said to be an overloaded function. अब overloaded function किसको बोलते हैं? अगर same scope में हम बहुत सारे functions लिखते हैं जिन सबका नेम सेम होगा, बस वो फंक्शंस कैसे डिफर करेंगे एक दूसरे से? बाय देयर सिग्नेचर्स. सिग्नेचर्स मीन्स या तो वो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स में अलग होने चाहिए या फिर उनके आर्ग्यूमेंट्स का टाइप अलग होना चाहिए. देन वी मे कॉल कि ये जो फंक्शंस हैं जिन सब का नेम सेम है पर सिग्नेचर अलग हैं, सो वी मे कॉल देम एज ओवरलोडेड फंक्शंस. प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग ओवरलोडेड फंक्शन इज कॉल्ड फंक्शन ओवरलोडिंग. और जब हम ओवरलोडेड फंक्शन लिखते हैं, दैट प्रोसेस इज नोन एज फंक्शन ओवरलोडिंग. लेट्स अंडरस्टैंड इट विद एग्जांपल. यहाँ पर दो फंक्शंस हैं डिवाइड, दोनों का रिटर्न टाइप सेम है फ्लोट, पर इनके सिग्नेचर्स अलग अलग हैं. फर्स्ट डिवाइड फंक्शन में देयर आर टू आर्ग्यूमेंट्स, both are of integer types. In second divide function, again there are two arguments, but they are of float type. अब अगर हम फर्स्ट डिवाइड फंक्शन और सेकेंड डिवाइड फंक्शन को कंपेयर करेंगे, इफ वील कंपेयर देयर सिग्नेचर्स, तो वी विल फाइंड कि दोनों में नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स तो सेम है, दोनों में टू टू आर्ग्यूमेंट्स थे, बट द टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स इज डिफरेंट. In first divide function, the type of both the arguments, first argument was integer and second argument का type भी integer था, जबकि second divide function में first argument का type float है और second का भी float है. So we may say कि दोनों divide function signatures से different है. So we may call these two divide functions as overloaded function, and process of writing them or creating them is known as function overloading. Need for function overloading. Function overloading not only implements polymorphism but also reduces number of comparisons in a program and thereby makes the program runs faster. Function overloading सिर्फ polymorphism ही implement नहीं करता है, बल्कि ये नंबर ऑफ कंपैरिजंस को भी कम करता है किसी प्रोग्राम में. और जब नंबर ऑफ कंपैरिजंस कम हो जाते हैं किसी प्रोग्राम में, तो प्रोग्राम स्टार्ट रनिंग फास्टर. दैट मीन्स इट विल सेव अवर टाइम ऑल्सो. नेक्स्ट इज declaration and definition. First point, the key to function overloading is function's argument list, which is also known as function signature. It is the signature, not the function type, that enables function overloading. Function overloading का की क्या है, मतलब main important point which is to be focused on is the argument list of function. किसी भी function की argument list ही सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फंक्शन ओवरलोडिंग में, जिसको फंक्शन सिग्नेचर भी कहते हैं. और फंक्शन सिग्नेचर से ही फंक्शन ओवरलोडिंग इनेबल होता है, ना कि फंक्शन के रिटर्न टाइप से फंक्शन ओवरलोडिंग इनेबल होगा. सेकेंड पॉइंट इज, इफ टू फंक्शंस आर हैविंग सेम नेम and type of arguments in the same order, they are said to have same signatures. अगर हमारे पास कोई दो functions हैं जिनका नेम सेम है और उनके आर्ग्यूमेंट्स, नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स सेम ऑर्डर में हैं,
तो उन दोनों के सिग्नेचर्स सेम होंगे। इवन इफ दे आर यूजिंग डिस्टिंक्ट वेरिएबल नेम इट डज नॉट मैटर, चाहे वो वेरिएबल नेम अलग यूज कर रहे हों, पर अगर उनका नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है और डेटा टाइप ऑर्डर सेम है। डेटा टाइप ऑर्डर मतलब अगर एक फंक्शन का फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर है और सेकंड फंक्शन का भी फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर है, फर्स्ट फंक्शन का सेकेंड आर्ग्यूमेंट फ्लोट है और सेकेंड फंक्शन का सेकेंड आर्ग्यूमेंट फ्लोट है, इसका मतलब कि वो सेम ऑर्डर में है। और अगर सेम ऑर्डर में उनका डेटा टाइप सेम है तो उन दोनों का सिग्नेचर सेम होगा, और अगर सिग्नेचर सेम होगा तो फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हाउ द कंपाइलर विल डिफरेंशिएट बिटवीन दीज टू फंक्शंस। लेट्स सी, वी हैव टू फंक्शंस कैलकुलेशन। हमारे पास यहाँ पर दो फंक्शंस हैं, दोनों का नाम सेम है कैलकुलेशन, बिकॉज इट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन ओवरलोडिंग। नाउ जस्ट सी द सिग्नेचर्स। फर्स्ट फंक्शन कैलकुलेशन के सिग्नेचर में दो वेरिएबल्स हैं a एंड b। फर्स्ट वेरिएबल a का डेटा टाइप है इंटीजर, सेकेंड वेरिएबल b का डेटा टाइप भी है फ्लोट। सेम इज विद द सेकेंड फंक्शन कैलकुलेशन ऑल्सो। सिग्नेचर में दो आर्ग्यूमेंट्स है x और y, x का टाइप है इंटीजर और y का टाइप है फ्लोट। दैट मीन्स when we'll compare the signatures of these two functions we will come to know कि दोनों के signatures same हैं, क्योंकि दोनों में number of arguments भी same थे and type of arguments and their order is also same। दोनों का टाइप और उनका ऑर्डर भी सेम है। अगर हमारे पास कभी एक और कोई फंक्शन होता कैलकुलेशन, उसमें भी अगर दो आर्ग्यूमेंट्स होते पर उसका फर्स्ट आर्ग्यूमेंट फ्लोट होता और सेकेंड इंटीजर होता, तो उसके लिए हम बोलते कि इस फंक्शन का सिग्नेचर पहले वाले से डिफरेंट है, क्योंकि उसमें ऑर्डर चेंज हो गया था डेटा टाइप्स का। कमिंग टू थर्ड पॉइंट, in Java function overloading can be done with functions having same name but different signatures. So let's understand it with the example of function overloading. We have class P1, कोई प्रोग्राम लिखा है हमने with the class P1 जिसमें 3 functions हैं with the name add। तीनों functions का name same है as we are going to use the concept of function overloading. So the concept of function overloading says कि जितने भी फंक्शंस हम लिख रहे हैं सेम स्कोप में सबका नेम सेम होना चाहिए, बट दे शुड डिफर इन देयर सिग्नेचर। सिग्नेचर मतलब या तो नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स अलग अलग होने चाहिए या फिर उनका टाइप अलग अलग होना चाहिए। सो जस्ट सी, फर्स्ट फंक्शन ऐड में देर आर 2 आर्ग्यूमेंट्स और दोनों का टाइप है इंटीजर। ओके, सेकेंड फंक्शन ऐड में अगेन वी हैव 2 आर्ग्यूमेंट्स, दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट सेम है फर्स्ट फंक्शन ऐड का और सेकेंड फंक्शन ऐड का, पर सेकेंड फंक्शन ऐड के आर्ग्यूमेंट्स का डेटा टाइप अलग अलग है। लाइक फर्स्ट आर्ग्यूमेंट का डेटा टाइप था इंटीजर और सेकेंड का है डबल। तो व्हेन वी विल कंपेयर द सिग्नेचर ऑफ सेकेंड फंक्शन ऐड विद द सिग्नेचर ऑफ फर्स्ट फंक्शन ऐड, तो दोनों का सिग्नेचर सेम नहीं है। सिमिलरली we can compare the signature of the third function add with the above two functions। अगर थर्ड फंक्शन ऐड के सिग्नेचर को देखेंगे तो उसमें भी 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट्स आर सेम एज अबव 2 फंक्शंस, पर अब थर्ड फंक्शन में ऑर्डर ऑफ टाइप डेटा टाइप चेंज हो गया है एज कंपेयर टू सेकेंड फंक्शन। सेकेंड फंक्शन ऐड में एक इंटीजर था और एक डबल आर्ग्यूमेंट था, पर उनका ऑर्डर क्या था, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर था और सेकेंड आर्ग्यूमेंट डबल था। थर्ड फंक्शन ऐड में फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डबल है और सेकेंड आर्ग्यूमेंट इंटीजर है, इसका मतलब ऑर्डर ऑफ टाइप डेटा टाइप हैज बीन चेंज्ड हियर, एंड सो वी कैन से दैट दीज 3 functions with the same name are there but their signatures are different। तो इन 3 functions के साथ फंक्शन ओवरलोडिंग पॉसिबल है। नाउ हाउ टू कॉल ओवरलोडेड फंक्शंस। अब हमने ओवरलोडेड फंक्शंस बनाना तो सीख लिया, पर इनको कॉल कैसे करते हैं। ओवरलोडेड फंक्शंस आर कॉल्ड
जस्ट लाइक अदर फंक्शंस, जैसे हम दूसरे फंक्शंस को कॉल करते हैं, इन द सेम वे ओवरलोडेड फंक्शंस को भी कॉल करना पड़ता है. द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स डिटरमाइन विच फंक्शन टू बी इन्वोक्ड. अब इसमें कंपाइलर को कैसे पता पड़ेगा कि सेम नेम वाले बहुत सारे फंक्शंस में से कौन से फंक्शन को कब कॉल करना है? इट टोटली डिपेंड्स ऑन द नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट. जस्ट सी द एग्जाम्पल. अभी जो हमने प्रोग्राम पढ़ा था जिसमें 3 functions were there with the same name add but different signatures, तो उन्हीं functions को कॉल करने के लिए अब हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट इज p11.add 3,5. इसमें p11 ऑब्जेक्ट का नेम है, add is the name of the function, 3,5 these are 2 arguments of type integer. that means ये वाला स्टेटमेंट उस add फंक्शन को कॉल करेगा जिसमें 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं और दोनों इंटीजर टाइप के हैं. Coming to next statement, p11.add 6.5,4. that means इस स्टेटमेंट से वो add फंक्शन कॉल होगा जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट डबल टाइप का है एंड सेकेंड आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है. Coming to third statement, p11.add 7.7, 2.4. so this statement will call that function जिसमें फर्स्ट आर्ग्यूमेंट इंटीजर टाइप का है और सेकेंड डबल टाइप का है. तो अकॉर्डिंगली कंपाइलर विल अंडरस्टैंड कि किस स्टेटमेंट से कौन सा फंक्शन कॉल करना है. ये टोटली डिपेंड करता है नंबर एंड टाइप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स वी आर यूजिंग इन कॉलिंग दीज फंक्शंस. I hope the concept of function overloading might be clear to you. So in the next video we will come with some examples, some programs, how to write the programs in Java with the concept of function overloading. So stay tuned with the videos so that you can check कि programs, Java के programs function overloading के साथ कैसे easily लिख सकते हैं. If you like this video, please like it, subscribe it so that जब भी हमारे नए वीडियो रिलीज हो, you are tuned with the new videos.